Hello students, this is Shalini and your next topic is pollen pistil interactions. So let's start and read this topic. Pollination does not guarantee the transfer of right type of pollen. Means कि compatible pollen of same species as the stigma. अभी जो pollination हो रही है तो वहाँ पर वो गारंटी नहीं है कि जो pollen का transfer हो रहा है that is of right type, वो compatible होगा stigma से, ठीक है. So often pollen of wrong type either from other species or from the same plant also land on the stigma. तो कभी कभार क्या हो जाता है कि रॉन्ग टाइप का पोलन भी स्टिग्मा में लैंड कर जाता है, ठीक है. The pistil has the ability to recognize the pollen whether it is of right type or of wrong type. तो जो पिस्टल है उसके पास एबिलिटी प्रेजेंट होती है ये फाइंड आउट करने की कि जो पोलन ग्रेन लैंड करने वाला है वो क्या होगा, उसी के अकॉर्डिंग है या उसके अकॉर्डिंग नहीं है, कंपैटिबल है या इनकम्पैटिबल है. If it is of right type, the pistil accepts pollen and promotes post pollination events. और अगर वो क्या है, वो right type का है तो पिस्टल एक्सेप्ट कर लेता है पोलन को और पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स जो होंगे उनको परफॉर्म करते हैं. तो यहाँ पर आपके दो टॉपिक्स हैं, पिस्टल एंड जो आपका ये कंपैटिबल फाइंड आउट करेगा एंड इनकम्पैटिबल को फाइंड आउट करेगा, ठीक है. Now next हम देखते हैं. If the pollen is of wrong type, the pistil reject the pollen by preventing pollen germination on stigma or the pollen tube growth in the style. अगर जो pollen land हो रहा है वो क्या है, अगर wrong type का है तो the pistil reject the pollen by preventing pollen germination on stigma or the pollen tube growth in the style. The ability of pistil to recognize the pollen followed by its acceptance or rejection is a result of continuous dialogue between pollen grain and the pistil. And this dialogue is mediated by chemical component of pollen interacting with those of the pistil. So it is only in recent years that botanists have been able to identify some of the pollen and pistil component and interactions leading to recognition followed by acceptance or rejection. So as mentioned earlier, following compatible pollination, the pollen germinate on stigma to follow a pollen tube through one of the germ pore. अब होता क्या है कि अगर कंपैटिबल पॉलिनेशन हो जाती है तो जो पोलन ग्रेन है वो जर्मिनेट कर जाएगा स्टिग्मा पे और प्रोड्यूस करेगा पोलन ट्यूब थ्रू वन ऑफ द जर्म पोर्स, ठीक है. द कंटेंट ऑफ पोलन ग्रेन मूव इनटू द पोलन ट्यूब, जो कंटेंट है उसके वो मूव कर जाएंगे पोलन ट्यूब को. पोलन ट्यूब ग्रोज थ्रू द टिश्यू ऑफ स्टिग्मा एंड स्टाइल एंड रीचेज द ओवरी, और वो धीरे धीरे क्या करेगा, ओवरी तक रीच कर जाएगा. पोलन ट्यूब ग्रोज थ्रू द टिश्यू स्टिग्मा स्टाइल एंड रीचेज द ओवरी. You would recall that in some plant, pollen grains are shed at 2 cell condition. अब हमने पढ़ा था 2 cell condition and 3 cell condition, ठीक है. So 2 cell conditions क्या होती थी, vegetative cell और generative cell. In such plant, the generative cell divide and form 2 male gamete. अब यहाँ इस केस में क्या होगा, जो जनरेटिव सेल्स हैं वो डिवाइड करते थे और 2 मेल गैमेट्स को फॉर्म कर देते थे ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब इन स्टिग्मा. इन प्लांट विच शेड पोलन इन 3 सेल कंडीशन, अब जो 3 सेल कंडीशन वाले थे यहाँ पर आपको 2 मेंशन कर दी गई हैं. ये 2 सेल है और यहाँ पर आपकी 3 सेल कंडीशन है. ठीक है, 3 सेल कंडीशन में क्या होगा, पोलन ट्यूब कैरी द 2 मेल गैमेट एंड फ्रॉम द बिगिनिंग
पोलन ट्यूब आफ्टर रीचिंग द ओवरी एंटर्स द ओव्यूल थ्रू माइक्रोपाइलर एंड, अगर तो वो माइक्रोपाइलर एंड से जा रहा है, एंड देन एंटर वन ऑफ द सिनर्जिड, सिनर्जिड के पास पहुंचेगा थ्रू फाइलीफॉर्म एपरेटस, ठीक है, फाइलीफॉर्म एपरेटस से पहुंचेगा. Many recent studies have shown that filiform apparatus present at the micropylar part of synergid guide the entry of pollen tube. तो यहाँ पर आपको फाइलीफॉर्म apparatus का फंक्शन बता रहे हैं ये. फाइलीफॉर्म apparatus, ठीक है. All these events from pollen deposition on stigma until pollen tube enter the ovule are together referred to as pollen pistil interaction. ठीक है, इनको क्या कहा जाता है? इनको पोलन पिस्टल इंटरेक्शन कहा जाता है. सॉरी, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन कहा जाता है. तो यहाँ पर आपका ये पोलन पिस्टल इंटरेक्शन के बारे में बताया. अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ थ्रू योर डायग्राम्स. Now, this is a structure of पोलन ट्यूब. फ्लावर का लॉन्गिट्यूडिनल क्रॉस सेक्शन है, इसको देखते हैं. दिस इज द पोलन ट्यूब, ठीक है. दीज आर एंटीपोडल सेल्स. इन द सेंटर वी हैव पोलर न्यूक्लियाई, देन वी हैव एग एंड देन वी हैव सिनर्जिड्स, ठीक है. Now this D1 is enlarged view of an egg apparatus showing entry of pollen tube into synergids. अब जो वो pollen tube है वो enter करेगी synergids की तरफ को. तो ये हमारा फाइलीफॉर्म एपरेटस है जो अभी हमने नीचे देखा, फाइलीफॉर्म एपरेटस. एंड यहाँ पर आपके मेल गैमीट्स हैं एंड वेजिटेटिव न्यूक्लिया है, ठीक है. तो वो एंटर कर रहा है थ्रू फाइलीफॉर्म एपरेटस और यहाँ पर हमारे सिनर्जिड प्रेजेंट हैं, ठीक है. दिस वन इज सेंट्रल सेल, दीज आर टू पोलर न्यूक्लिया है, ये एग न्यूक्लियस होगा. इसके बाद ई में हमारा शो किया गया है डिस्चार्ज ऑफ मेल गैमीट इनटू सिनर्जिड एंड मूवमेंट ऑफ स्पर्म, one into the egg and other into the central cell. ये हमारे मेल गैमीट्स हैं जो अंदर जाके डिस्चार्ज हो चुके हैं इन सिनर्जिड एंड मूवमेंट ऑफ स्पर्म्स, ठीक है. वन इंटू एग एंड अदर इंटू सेंट्रल सेल. ये थे हमारे पोलर न्यूक्लिया, एक यहाँ की तरफ को और दूसरा एग्स की तरफ को, ठीक है. तो ये है हमारी पोलन पिस्टल इंटरेक्शन. नाउ नेक्स्ट रीड करते हैं. एज पॉइंटेड आउट अर्लियर, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन इज अ डायनेमिक प्रोसेस. ये क्या है जी? डायनेमिक प्रोसेस है इन्वॉल्विंग पोलन रिकॉग्निशन फॉलोड बाय प्रमोशन और इनिबिशन ऑफ पोलन्स, ठीक है. द नॉलेज गेन्ड इन दिस एरिया वुड हेल्प द प्लांट ब्रीडर इन मैनिपुलेटिंग pollen pistil interaction even in incompatible pollination to get desired hybrids. अब जब हमें ये स्टेप्स पता हैं सारे पोलन पिस्टल इंटरेक्शन के, तो जो हमारे जो बॉटनिस्ट हैं वो क्या कर सकते हैं, जो इनकम्पैटिबल भी होंगे प्लांट उनमें भी थोड़ी बहुत ऑल्ट्रेशन करके, इन इंटरेक्शंस में ऑल्ट्रेशन करके क्या कर सकते हैं, अपना डिज़ायर्ड हाइब्रिड डाल सकते हैं,
ठीक है. So you can easily study pollen germination by dusting some pollen from flower such as pea, chicken pea, crotalaria, balsam and vinca on a glass slide containing a drop of sugar solution. After about 15 to 30 minutes, observe the slide under low power lens of microscope. You are likely to see pollen tubes coming out of the pollen grains. तो ये कह रहे हैं कि हम इसको और कैसे कर सकते हैं. पोलन्स हम लेंगे और उसको हम डस्ट कर देंगे ग्लास स्लाइड पे, जिस पे हमने क्या ऐड किया होगा, जिसमें हमने शुगर सॉल्यूशन ऐड किया होगा. तो ये चीज़ आपकी इम्पॉर्टेंट है. कंटेनिंग अ ड्रॉप ऑफ शुगर सॉल्यूशन अबाउट 10%, और उसको 15 to 30 मिनट बाद जब हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो हमें उसमें पोलन ट्यूब्स जो जनरेट होनी होंगी वो दिखने लग पड़ेंगी. As you shall learn in the chapter on plant breeding, a breeder is interested in crossing different species and often genera to combine desirable characters to produce commercially superior varieties. अब जैसे हम लर्न कर रहे हैं चैप्टर ऑन प्लांट ब्रीडिंग को, तो अ ब्रीडर इज़ इंटरेस्टेड, वो ब्रीडर किस में इंटरेस्टेड होगा, क्रॉसिंग डिफरेंट स्पीसीज़ को, एंड ऑफन जेनरा टू कंबाइन डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स टू प्रोड्यूस कमर्शियली सुपीरियर वेराइटीज़, ताकि अच्छी वेराइटीज़ निकले. नाउ नेक्स्ट इज योर आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन. इट इज़ वन ऑफ द मेजर अप्रोचेज ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम. ठीक है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है एंड इम्पॉर्टेंट है. आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, it is one of the most major approaches of crop improvement program. In such crossing experiment, it is important to make sure that only the desired pollen grain are used for pollination and the stigma is protected from contamination. अब इन केसेस में क्या देखा जाता है कि only desired pollen grains are used. सबसे पहले desired pollen grain यूज़ किए जाएंगे, उसके बाद द स्टिग्मा इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम कंटेमिनेशन, उसके बाद स्टिग्मा को प्रोटेक्ट किया जाएगा कि कोई और पोलन वहाँ पर एंटर ना हो सके. एंड दिस इज अचीव्ड बाय इमेस्कुलेशन एंड बैगिंग टेक्निक्स. इमेस्कुलेशन एंड बैगिंग टेक्निक्स. ठीक है, तो नेक्स्ट हम रीड करते हैं इमेस्कुलेशन. इफ अ फीमेल पेरेंट बियर्स बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, सो रिमूवल ऑफ एंथर from the flower bud before anther dices using a pair of forceps is necessary, and this step is your emasculation. इस step को emasculation कहा जाता है. Emasculated flowers have to be covered with a bag of suitable size. उसके बाद उसको कवर करना पड़ता है किसी बैग से, जनरली मेड अप ऑफ बटर पेपर, टू प्रिवेंट कंटेमिनेशन ऑफ स्टिग्मा विद अनवांटेड पोलन, एंड दिस इज नोन एज योर बैगिंग. इस प्रोसेस को बैगिंग कहा जाता है. तो यहाँ पर आपके टू इम्पॉर्टेंट जो इसमें है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में, emasculation and your bagging, ये कवर हो गया है. ठीक है, नेक्स्ट, when the stigma of bagged flower attains receptivity, mature pollen grains collected from anther of male parent are dusted on the stigma and flowers are rebagged and fruits allowed to develop. अब क्या होगा, जब स्टिग्मा ऑफ बैग्ड फ्लावर अटेन रिसेप्टिविटी, उसके बाद मैच्योर पोलन ग्रेन को कलेक्ट किया जाएगा एंथर से और उसको डस्ट कर दिया जाएगा स्टिग्मा पे. उसके बाद उसको अगेन रीबैग किया जाएगा और फ्रूट को अलाउ किया जाएगा डेवलप होने के लिए. If the female parent produces unisexual flower, there is no need of for emasculation. अगर जो फीमेल वो है पेरेंट है फ्लावर है, तो अगर वो यूनिसेक्सुअल है तो वहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है इमेस्कुलेशन करने की. द फीमेल फ्लावर बर्ड्स आर बैग्ड बिफोर फ्लावर ओपन, तो पहले ही उस फ्लावर को बैग किया जाएगा. व्हेन स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव, पोलिनेशन इज कैरिड आउट यूजिंग डिजायर्ड पोलन एंड फ्लावर इज रीबैग्ड. तो वो हमारे पास जो चाहिए हमें पोलन वो ऑलरेडी वहाँ पर ही प्रेजेंट है. तो ये केस है हमारा यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स का. ठीक है,
यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स के केस में ऐसा होगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डबल फर्टिलाइजेशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड double fertilization. So, after entering one of the synergid, pollen tube releases two male gametes into the cytoplasm of synergids. इतना हमने पढ़ लिया था कि जब पोलन ट्यूब के अंदर जब 2 मेल गैमीट्स एंटर कर जाते हैं सिनर्जिड को, तो वो उसके साइटोप्लाज्म में एंटर हो जाएंगे. वन ऑफ द मेल गैमीट मूव टुवर्ड्स एग सेल, वन ऑफ द मेल गैमीट मूव टुवर्ड्स द एग सेल एंड फ्यूजेस विद न्यूक्लियस, thus completing the syngamy. अब जो एक मेल गैमीट होगा वो एग सेल की तरफ मूव करेगा और वहाँ पर फ्यूजन करेगा और सिनगैमी प्रोड्यूस कर देगा. दिस रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड जाइगोट. अब यहाँ पर डिप्लॉयड जाइगोट बन जाएगा. ठीक है. नाउ द अदर मेल गैमीट मूव टूवर्ड द टू पोलर न्यूक्लिया. अब जो दूसरा मेल गैमीट है वो कहाँ को मूव करेगा? अदर मेल गैमीट मूव टूवर्ड्स द टू पोलर न्यूक्लियाई located in the central cell and fuses with them to produce triploid primary endosperm. अब वहाँ पर क्या करेगा वो? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस फॉर्म करेगा, PEN. As this involves the fusion of 3 haploid nuclei, it is termed triploid fusion. अब जैसे कि यहाँ पर फ्यूजन हो रहा है 3 हैप्लॉयड न्यूक्लियाई का, तो इसको ट्रिपल फ्यूजन कहा जाता है. ना 3 कौन से? लेट मी अगेन एक्सप्लेन. 1 मेल प्लस 2 पोलर. ठीक है. तो उन्होंने क्या किया, वो 3 आपस में फ्यूज होंगे और इसको हम क्या देते हैं? ट्रिपल फ्यूजन. ठीक है. और यहाँ पर हमारी स्टार्टिंग में क्या हो चुकी है? सिनगैमी. यहाँ पर सिनगैमी मीन्स योर जो फर्टिलाइजेशन होती है नॉर्मल. सिंस 2 टाइप्स ऑफ फ्यूजन, सिनगैमी एंड डबल फ्यूजन टेक प्लेस इन एन एम्ब्रियो सैक, सो दिस फिनोमिनन इज नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन. तो अब आपको ये समझ आ गया होगा डबल फर्टिलाइजेशन यहाँ पर हमने क्यों वर्ड यूज़ किया था. क्योंकि एक यहाँ पर सिनगैमी हो रही थी एंड दूसरी हमारी ट्रिपल फ्यूजन हो रही थी. ठीक है. द सेंट्रल सेल आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन बिकम प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल. अब वो सेल क्या बन जाता है? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बन जाता है एंड डेवलप्स इनटू एंडोस्पर्म. और वो क्या फॉर्म करेगा? हमारा एंडोस्पर्म. और जो जाइगोट है वो क्या फॉर्म करेगा? एम्ब्रियो. तो यहाँ पर फिगर में इसको एक बार देख लेते हैं. ये हमारे डीजेनरेटिंग सिनर्जिड हैं. यहाँ पर जाइगोट फॉर्म होगा. दिस इज योर प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल एंड दिस इज प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस एंड दीज आर डीजेनरेटिंग एंटीपोडल सेल्स. ठीक है. तो नेक्स्ट हम रीड करते हैं आपके पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद जो स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स होते हैं वो. तो नेक्स्ट आपकी पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अंडरस्टैंड करवाती हूँ. ओके, थैंक यू.